Okay, a very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine, and you all have enjoyed your Sunday. So today we are going to start with our chapter role of the government in health, and today we are going to continue to healthcare services. Okay. In our last class, what we have discussed about the two persons, two friends, Aman and Ranjan. One belonging to a very good family, he is very rich, okay, and other belongs to a normal family, okay. Both both were suffering from viral fever, so both visited to doctors, okay, but both the doctors are different. They both went to different hospitals. One went to the private hospital, and another one went to the public hospital. The experiences of both the persons are very different. One who went to the private hospital quite had a very good experience, but it cost him so much, okay. And the another one who went to the public hospital, his experience is not quite much good, okay. He also The doctors also took quite much time to figure out his problem, but his treatment was so cheap. So you आपने देखा कि कितना डिफरेंस है दोनों ही पब्लिक सर्विसेज और प्राइवेट सर्विसेज में, okay. Okay, so today we are going to understand about the healthcare services. Okay, so healthcare services, as you have seen in your screen, healthcare services divided into two parts. Okay, public healthcare services and private healthcare services or private health facilities or private healthcare. Okay, so healthcare services, healthcare, what are healthcare services? Healthcare services, like the in our last class also we have discussed about the what are healthcares means centers such as hospitals, laboratories for testing, blood banks, etc., and the doctors, nurses, and the medicines. These all come into the healthcare services. And now we have divided healthcare services into two parts, that is public health services and private health services. And we have seen the difference of public health service and private health service. So we will discuss public health services deeply. So, public health services. The public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. Now, from the term public on itself, you are going to understand the meaning. Something which is public, take something which runs by the government. Wherever you see the word or term public, it means something, it is something which is run by the government, okay. The public health service is a chain of health centers. Chain of health centers matlab health centers जो और hospitals कौन run करता है, it is run by the government. They are linked together, so they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems, from common illness to special services. Now, public health services जो हैं, जो हेल्थ सेंटर्स के जो चेन्स है, लाइक लेबोरेटरीज हो गया, ब्लड बैंक्स हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, एटसेट्रा, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, दे ऑल आर लिंक्ड टुगेदर. व्हाई they are linked together? Because they are able to cover both rural areas and urban areas, ठीक है. रूरल एरियाज जो विलेजेस के एरियाज है, जो सिटीज के एरियाज है, दोनों ही एरिया को वो क्या कर सके, कवर कर सके, ठीक है. और जितने भी टाइप के आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो सब टाइप के ट्रीटमेंट्स को क्या कर सकें, ऑल काइंड, दे कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट्स टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स की. आपका एक छोटा सा मतलब अगर आपको खांसी बुखार है, उससे लेकर आपको अगर कैंसर मतलब नॉट आपको सॉरी कैंसर, टीबी एटसेट्रा कुछ भी है, हर टाइप की इलनेस को, वो प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, वो सॉल्व कर सके, ट्रीट कर सके.
At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors at the primary health centers. Such a center covers many villages in a rural area. नाउ विलेज लेवल पे जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो क्लिनिक्स बने हुए होते हैं, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वो नॉर्मली वो कौन रन करता है? वहाँ पे एक नर्स होती है या फिर एक वहाँ पे एक विलेज का हेल्थ वर्कर होता है जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कॉमन इलनेस को कैसे ट्रीट कर सकते हो, कैसे डील कर सकते हो, और वो किसके अंडर वर्क करते हैं? दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स। कौन से? जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक गवर्नमेंट का ही है, हेल्थ सेंटर है, ठीक है, सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। So the a nurse and a village health worker who trained under the who trained for treating common illness and who worked under the supervision of doctors, ठीक है, at the primary health services. और ये जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं आपकी, मोस्टली इंडिया के जितने भी रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, उनको कवर करती है। Now at the district level, जो जिला आप बोलते हो, at the district level is the district hospital that also supervises all the health centers. District level पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं आपके, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जिले जैसे बीकानेर एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अब बीकानेर के अंडर बहुत सारे क्या आते हैं? गांव आते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे अब जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां से मोस्टली अगर वहां पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले कहाँ आते हैं? वो सबसे पहले हमारे बीकानेर में ही आएगा। बीकानेर इज अ डिस्ट्रिक्ट, तो बीकानेर में ही आते हैं और वहाँ पे यहाँ पे जो बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे अपने आप को ट्रीट करवाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वो सारे हेल्थ सर्विसेज को, सेंटर्स को क्या करते हैं? सुपरवाइजेस करते हैं। Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as the one in Hakim Sheikh's stories. Now जो लार्ज सिटीज होती है, लाइक जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, लाइक जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली, कुछ अहमदाबाद, like Chennai, Kolkata, etc. These are large cities. ओके, लार्ज सिटीज मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती है, बहुत सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती है, ठीक है। और आपने अमन की स्टोरी में भी देखा था, हमने अमन की और रंजन की स्टोरी पढ़ी थी। तो अमन जिस हॉस्पिटल में गया था, ठीक है, वो भी एक लार्ज सिटी में ही रहता था, वहां गया था। और हाकिम शेख की भी स्टोरी में देखा था कि वो कोलकाता में बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए थे। तो वो भी सारे क्या थे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे जो अलग अलग चीजों में स्पेशलाइज्ड थे, राइट। द हेल्थ सर्विसेज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजंस। अब आप बोलोगे ये जो हेल्थ सर्विसेज है मैम, इनको हमने पब्लिक वर्ड क्यों दिया है, ठीक है, व्हाई वी कॉल देम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज? So, in order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. कि गवर्नमेंट सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सके अपने सिटीजन्स को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसलिए ऐसी हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स को स्टैब्लिश किया है, ठीक है। So the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes, and such facilities are meant for everyone. Now ये जितने भी resources हमें मिलते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट को रिसोर्सेज मिलते हैं ना, जो सर्विसेज, हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको लैंड भी चाहिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, फिर आपको वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी चाहिए, अब डॉक्टर्स भी चाहिए, अब उनकी सैलरी भी तो हमें पे करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को जो भी रिसोर्सेज यूज नीड है, ठीक है, सर्विसेज के लिए जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए होती है, जितने भी रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से आता है? हम जो पब्लिक है, ठीक है, जो टैक्स पे करती है, उसी से आपका, उसी मनी से, उसी पैसे से गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है, उसी पैसे से ये सारी सर्विसेज हमें मिलती है।
हेल्थ तो हमने मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर में हमने हेल्थ जो है पब्लिक एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें रोल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जो भी हमारे पास टैक्सेस, गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है जो पब्लिक पे करती है, उसी से जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को रिसोर्सेज की, वो फुलफिल की जाती है, ठीक है। और ये फैसिलिटीज इसलिए भी सबके लिए रिक्वायर्ड, सबके लिए बनती है क्योंकि हमें तो पे करते हैं ना, गवर्नमेंट ही टैक्स, ये पब्लिक ही टैक्सेस पे कर रही है, और पब्लिक के पैसे से ही वो जितनी भी आपकी सर्विसेज वगैरह है आपको चीप रेट में मिलती है, वो उसी से ही मिलती है, ठीक है। One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment. Now, जो मेन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो इम्पॉर्टेंट उनका रोल होता है, इम्पॉर्टेंट उनका आप बोल सकते हो कि एस्पेक्ट होता है कि उनका, उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। वी प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट, या तो फ्री या बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम पैसे में उसको क्या करें, प्रोवाइड करें उनको ट्रीटमेंट, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। जो पुअर है वो भी क्या कर सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है, ओके। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, और अभी बहुत ही आपका बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, दैट इज कोरोना वायरस, तो ये भी आते हैं, ठीक है। जो पब्लिक हेल्थ केयर होती हैं उनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये जो भी हमारे डिजीजेज हैं उनको स्प्रेड करने से रोके, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, कोलेरा हो गया, बहुत साल पहले पोलियो भी था, ठीक है, डायरिया हो गया, ये चिकनगुनिया हो गया, ये जो डिजीजेस है उनको स्प्रेड करने से जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है वो क्या करे, उनको रोका जाए। अब देखिए आपको ना बहुत, आपको आई डोंट नो आपने लिया है कि नहीं लिया है, बट बहुत साल पहले जो है ना इंडिया में बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती थी, ठीक है, आज से 10 साल पहले आप बोल सकते हो, या फिर मैं जब आपके एज की थी, ठीक है, वैसे तो वो 10 ईयर्स तक के बच्चों को देते हैं, बट जैसे मैं छोटी थी जब 7-8 ईयर्स की थी तब पोलियो ड्रॉप्स दी जाती थी और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बोलते हो कि अब उनके पास इतना पैसा कैसे आता है, गवर्नमेंट की पूरी सब बच्चों को वो फ्री में इतना पहना, तो जो हम टैक्स पे करते हैं उसी से क्या है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है आपको दवाइयाँ या सर्विसेज। तो गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल और क्या है कि जो भी डिजीज स्प्रेड होती है उनसे उसको हटाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी पब्लिक हेल्थ केयर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. गवर्नमेंट को इसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत साल पहले, आज से मतलब लाइक 30 इयर्स समझ लो, ठीक है, 30 इयर्स से गवर्नमेंट चला रही है कि पोलियो ड्रॉप्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती थी और बहुत से ऐसे अभियान चलते थे जिससे कि गवर्नमेंट बोलती थी गवर्नमेंट कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देने, तो हर संडे पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता था, घर घर जाके दिया जाता था, या फिर आपके घर के आसपास का जो एरिया होता था, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई हेल्थ सेंटर है वहां पे जाके गवर्नमेंट बोलती थी कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप को पिलाए, क्यों पिलाए, जिससे कि बच्चा जो है आगे जाके उसको पोलियो ना हो जाए, ठीक है। पोलियो में क्या होता है, आपकी जो लोअर बॉडी होती है मोस्टली जो होती है वो वर्क नहीं करती है, तो वो काफी पहले स्प्रेड हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या है, अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या वो इफेक्टिव होता, आज की डेट में बहुत ही कम रेशियो में, मतलब है ही नहीं, वैसे तो कम रेशियो में क्या है, पोलियो है ही नहीं, मतलब नाक के बराबर है, तो गवर्नमेंट अगर लोग उसमें सपोर्ट नहीं करते तो वो क्या इफेक्टिव हो सकती थी, नहीं। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना ये सारी चीजें इफेक्टिव नहीं होती, राइट।
For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc., this has to be done for all houses in the area. Now, I'm going to give you an example. आपका एक example दिया गया है कि एक campaign चल रहा है कि mosquitoes जो हैं water coolers में, rooftops में breed ना करें, ठीक है? वो वहां पे फैले ना, इसके लिए बहुत से हर एरियाज में क्या किया गया है, कैंपेन चलाए गए हैं और वहां पे ऐसे मॉस्किटोज को भगाने के लिए दवाई भी छिड़की जा रही है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दिल्ली का, ठीक है? दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में क्या हो रहा था कि ये डेंगू ना फैले मलेरिया ना फैले, इसलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो हर एरिया में क्या करती है, मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो उसके लिए बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स करती है, लोगों को अवेयर करती है और घर घर जाके क्या करती है, जहाँ पे उनको लगता है कि वहाँ पे खतरा हो सकता है, मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं, घर घर जाके वो दवाइयाँ छिड़कते हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जितने भी आपके डिजीजेस हैं उनको स्प्रेड होने से गवर्नमेंट रोके, और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो चाहे कोई कितनी भी अच्छी सर्विसेज लेके आ जाए वो इफेक्टिव नहीं हो सकता, राइट? नाउ रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख. वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? मैंने आपको कल बोला था कि आप मुझे बताएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू आस्क यू अबाउट व्हाट कोर्ट has said to him. ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कोर्ट ने क्या कहा होगा? Okay, so according to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. The government must safeguard the right to life of every person. So according to our constitution, you all have the idea of about our fundamental duties, fundamental rights. We have 6 fundamental rights. According to our constitution, ये हमारी गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को, लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ठीक है? इट इज आवर राइट टू लाइफ है। हम इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास क्या राइट है? राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। सो इट इज द प्राइमरी ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की, वो अपने सिटीजन्स को क्या करे? इंश्योर करे उनकी सेफ्टी और उनका हेल्थ, ठीक है? The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. कोर्ट ने बोला जो भी डिफिकल्टीज हाकिम शेख ने फेस की है, अब आप सबने देखा हाकिम शेख ने अप्रोक्सीमेटली 14 आवर्स विदाउट ट्रीटमेंट क्या है निकाल दिए थे, वो अलग अलग हॉस्पिटल्स जा रहे थे, तो हो सकता है ना उनकी लाइफ, उनकी डेथ हो सकती थी, ठीक है? उनको हो सकता था उनका ब्रेन डेड हो जाए, हो सकता था ना ऐसा। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी हाकिम शेख ने डिफिकल्टी देखी है उससे उनकी जान भी जा सकती थी। If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, means that his protection of life is not being given. अगर कोई भी हॉस्पिटल, मोस्टली हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी हॉस्पिटल अगर मेडिकल ट्रीटमेंट एक पर्सन को जिसे बहुत जरूरत है नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है, इसका मतलब ये है कि वो उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। सो एंड दिस इज आवर राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। हेल्थ केयर सेंटर शुड गिव अस द proper treatment, okay? The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services. I already told you, it is the duty of government to provide all the necessary health services, including treatment or in emergency situations. Emergency situations में भी आपको treatment provide करवाए, ये government की जिम्मेदारी है, government की primary duty है। Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hospitals और जितने भी medical staffs हैं, doctors हैं, nurses हैं, जो भी हैं, उन सबको अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए और नेसेसरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है?
हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। देखिए हमने देखा 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उनको ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया। Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. तो कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, ठीक है, वहां के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, इसलिए जितना भी हाकिम शेख का कॉस्ट स्पेंड हुआ है, जितना भी कॉस्ट लगा है, जितना भी उसका खर्चा हुआ है, गवर्नमेंट को उसका पैसा, ट्रीटमेंट का पैसा उन्हें देना पड़ेगा। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड कि ये जो हाकिम शेख का है उसने उसमें कोर्ट ने क्या कहा होगा कि एंड बाय राइट टू लाइफ, बिकॉज राइट टू लाइफ इज आवर right and it is the primary duty of the government to take care of our protection, our life. Now एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को, हम पैसा कमा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को क्यों देते, हम जो टैक्स पे करते हैं हम गवर्नमेंट को टैक्सेस क्यों पे कर दें, ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। Government uses tax money for providing many public health services for the benefits of all citizens. जो गवर्नमेंट है टैक्स मनी का यूज करती है, किस लिए यूज करती है, टू provide health services or public services, not only health services, mostly all the public services to all the citizens, जिससे कि सारे citizens को benefit हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप घर से स्कूल आते हैं, ठीक है, अगर घर से स्कूल आते हुए आपके घर से स्कूल तक कोई रोड ही नहीं बनी हुई है, ठीक है, बहुत खड्डे हैं, बहुत सारी जैसे रोड क्लीन नहीं है, अगर वो सारी चीजें होंगी नहीं तो क्या आप स्कूल सेफली पहुंच पाओगे, आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी ना। तो ये जो गवर्नमेंट है, हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट रोड्स नहीं बनवा रही है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, तो बेटा ये भी सोचिए, इट इज आवर प्राइमरी ड्यूटी कि हम गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम क्या देते रहें, टैक्स देते रहें, क्योंकि जो गवर्नमेंट टैक्स मनी यूज करती है वो किसके लिए यूज करती है, वो पब्लिक सर्विसेज, जिससे कि सारे सिटीजन्स को क्या मिले, बेनिफिट मिले, इसलिए उस सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए वो गवर्नमेंट पैसा यूज करती है। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, अब देखिए डिफेंस, अगर हमारे बॉर्डर्स में, ठीक है, आर्मी ही नहीं होएगी तो क्या हमारी कंट्री सेफ होगी। अभी देखो रिसेंटली कितना चाइना के साथ कितना ड्रामा हुआ है, चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, कितना हो सकता था ना कि फिर चाइनीज अंदर आके नॉर्मल लोगों को भी हो सकता था कि वो प्रॉब्लम, मतलब उनको प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है, और भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, अगर वहां पे आर्मी ही नहीं होगी तो हम क्या सेफ फील करेंगे, हम सेफ फील नहीं करेंगे। तो सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम्स, हाईवेज एक्सेट्रा, इट बेनिफिट ऑल द सिटीजन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये सारी चीजें हमें बेनिफिट करती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और ये इन सब की जो सैलरी आती है, इन सब की जो वेपन्स यूज होते हैं या फिर जो भी रिसोर्सेज यूज होते हैं वो किस पैसे से जाता है, वो टैक्सेस से, टैक्स मनी से ही प्रोवाइड होते हैं। अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देम। और अगर हम सोचे कि हम अपने आप खुद बना लेंगे तो आप क्या सड़क बना लोगे, ठीक है, आप अपने घर के आगे बना सकते हो, और आप ज्यादा ही दिलदार हो, आप क्या कर लोगे, आप अपनी कॉलोनी की बनवा दोगे सड़क, क्या आप पूरे इंडिया की बनवा पाओगे, नहीं बनवा पाओगे ना, आप जहां जहां जाते हो आप वहां की बनवा पाओगे, नहीं बनवा पाओगे। सो द गवर्नमेंट यूज द टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग public services to the benefit of all the citizens. Okay, taxes fund developmental programs and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational trainings, etc. required for needy citizens. जो टैक्स फंड होते हैं उनके काफी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स भी चलते हैं, और सर्विसेज वो, और कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे एजुकेशन में हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, वो रोजगार देते हैं, सोशल वेलफेयर
कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स देते हैं जो जो भी सिटीजन्स जिनको रिक्वायर्ड होता है, नीडी होती है, ठीक है। टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज। फॉर एग्जाम्पल कभी अर्थक्वेक आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर कोई हो जाता है, तो उसकी रिहैबिलिटेशन जैसे उसके रिलीफ के लिए, ठीक है, फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा जो नेचुरल डिजास्टर आए हैं उस टाइम पे ये वो मनी गवर्नमेंट यूज करती है, टैक्स मनी को, जिससे कि वो लोगों को क्या कर सके, लोगों को बचा सके, लोगों को खाना दे सके। Space, nuclear and missile programs are also funded from the revenues collected as taxes. जो space programs आपका जो ये मार्स मिशन था इंडिया का, ठीक है, और चंद्रयान भी था, तो ये सारे जो स्पेस मिशंस होते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है, तो वो पैसा कहाँ से फंड होता है, वो टैक्सेस से ही फंड होता है, ठीक है। तभी हम अपनी बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, हमारे इंडिया का डेवलपमेंट होता है। Government provides some services especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market. Government कुछ सर्विसेज किसको प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज, गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर, पुअर्स को भी प्रोवाइड करवाती है जो मार्केट से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि राशन जो है गवर्नमेंट नीडी लोगों को क्या करवाती है, कम रेट्स में देती है। अभी आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि आपका गवर्नमेंट जो है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किसानों से क्या करती है, ग्रेन्स वगैरह खरीद लेती है और फिर जो नीडी होते हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस में उनको प्रोवाइड करवाते हैं खाना, ठीक है। सो आई थिंक दिस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ और हमें टैक्सेस क्यों पे करने चाहिए वो समझ आया। Everybody please read the chapter carefully, and if you have any problem you can ask me in our next class, okay? Please take care of yourself. Bye bye.